preparation में बस ये याद कर लेते हैं कि this combines with this to give this. Now why it happens, what is the reason behind that you need to understand. This is a very very important thing. Okay, तो जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन था preparation of alcohols from the alkene, किया था ना बेटा, लास्ट क्लास में ही किया है. From the alkene by hydration, by the acidic hydration. Yes or no? Yes, ma'am. मैं एक बार reaction बेटे, everybody has to participate in the discussion. If you will participate in the discussion, then only you will get to know how to solve the different questions. So preparation of the alcohols from the alkene by the acidic hydration. So this is basically the method of preparation we have done in the last class. The method of preparation. Now the question is, इसका question कैसे आता है ना? तो इसमें मैं आपको कुछ यहाँ पे एक practice questions दे रही हूँ. जैसे if I have taken the simple ethene, बच्चा इसको जब क्वेश्चन आया था ना, इसमें इथिलीन लिखा हुआ था, तो आई थिंक यू पीपल आर ओके विद इट. एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. इथीन इज हैविंग द कॉमन नेम इथिलीन एंड द अदर इज अ यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चा जी, द सेकंड कंपाउंड इज गिवन एज अ 1-butene. दिस इज अ A and this is a B. Third compound is given as the 2-butene, CH3, CH double bond CH and the CH3. Bacha, this is a C. This is distorted C. So this is a C. This is a 2-butene, and the fourth one is given as CH3, C, CH3 and double bond CH2. And this compound, whenever I saw this question ना, most of the time इसमें isobutene इसको लिखा हुआ है, IUPAC से नहीं दिया हुआ, तो तुम्हें पता भी होना चाहिए कि ये क्या है. तो इसको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन में आपको बताना है the rate of the acidic hydration, the rate of the acidic hydration of the alkene to form the alcohol. Means basically this is a method. And अगर किसी बच्चे ने last class नहीं करी है, if anybody was not there in the last class, so I am writing here the reaction for this. If you are having the alkene and you are making it react with the water and the acidic conditions are there like H2SO4, then there is a formation of the alcohol. That was a reaction. ठीक है, this is called as a acidic hydration of alkene. So that was actually the method. अब आपको क्या बताना है? You have to just tell me, if you are taking the A, B, C, D, which one is reacting more, means which is having the high reactivity toward this reaction. How will you identify? किसकी reactivity किसकी ज्यादा है? मैम इसमें कार्बोकैटायन बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग. Yes, of course. तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए. If you know the mechanism, then you give the answer. तन्वी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन के बेस पे you people will check कि which is having the more reactivity. तो बेटा कार्बोकैटायन इसमें तो किस भी साइड पे शिफ्ट कर सकते हो. Means you people can go either to this side, तब भी 1 डिग्री बनेगा कार्बोकैटायन, दूसरी साइड करोगे तब भी 1 डिग्री. तो इस क्वेश्चन में तो कार्बोकैटायन बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन. ओके, और इस क्वेश्चन में अगर इस साइड शिफ्ट करते हो तो 2 डिग्री बनता है, इस साइड शिफ्ट करते हो तो 1 डिग्री बनता है. तो ऑब्वियसली वी विल शिफ्ट द पेयर टू दैट साइड इन विच द कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज अ 2 डिग्री. तो दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन. So here if you are shifting like this, so this is again the 2 degree carbocation, and if you are shifting like this, then you are getting the 3 degree carbocation. ठीक है, अब मैंने कार्बोकैटायन भी बना दिया. तो रेट ऑफ द एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यू विल से, देखो इसलिए मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड. ठीक है, for this reason the mechanism is required, because in this mechanism the carbocation is formed. So as you know, I am writing it here as the carbocation is the reaction intermediate
So Markovnikov rule is a shortcut method only in order to solve the questions. बाकी आपको पता है कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट भी होगा मोर स्टेबल प्रोडक्ट के लिए, है ना? और आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को याद रखना है. The best thing is the rate of the acidic hydration of alkene is directly proportional to the stability of the carbocation. That's it. So what would be the order, beta? What would be the order? Quickly, सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा? सी वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. हाँ, डी वाला. तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डी वाले का सबसे कम किसका होगा? मैम 1 डिग्री. 1 डिग्री का. दैट मींस ए वाले का. ओके, हाउ यू पीपल आर गोइंग टू डिसाइड विद द बी एंड सी? हाउ यू पीपल विल डिसाइड अमंग बी एंड सी? मैम जिसमें बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग. नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है. एवरीबडी प्लीज बी ऑन म्यूट. इफ यू वांट टू गिव द आंसर देन यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज यू हैव टू बी ऑन म्यूट ऑल द टाइम. ओके, इसमें कैसे करना है? यू हैव टू जस्ट चेक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन ओनली. स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन. ओके, स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन कैसे चेक होती है? लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड. तो रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन, regarding the stability of the alkene, if you are having this type of the alkene, ये तो आपने खैर छांट लिया उससे, and if you are having this type of the alkene, if you are having this type of the alkene, so beta, in the case of determination of the stability of the alkene, how you people will identify this is actually, हाँ बोलो बोलो बोलो. ध्रुव बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मैम जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी. गुड गुड. इसको कैसे बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन आटम. अल्फा हाइड्रोजन आटम, अल्फा CH बॉन्ड मोरओवर. अल्फा CH कितने हैं? इफ द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म दिस साइड, तो दिस इज हैविंग 2 अल्फा CH, तो 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी. यू नो ना, in the last GOC section when we had done the GOC बच्चा, in that case the stability of the alkene we have decided on the basis of hyperconjugation, and here इस साइड शिफ्ट होता है तो ये वाले 3 स्ट्रक्चर हैं, इस साइड शिफ्ट होता है तो ये वाले 3 स्ट्रक्चर हैं. तो एक्चुअली 6 अल्फा कार्बन atom and the hydrogen are there and the 6 hyperconjugating structure is there. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर जाएगा आपका, दिस वुड बी मोस्ट स्टेबल, दिस वुड बी दिस. अब स्टेबिलिटी ऑर्डर जो भी एल्कीन का होगा, वॉट एवर वुड बी द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन. ओके, इफ द एल्कीन इज स्टेबल तो वुड इट अंडरगो द हाइड्रेशन? नो मैम. यस, ऑफ कोर्स. Stability of the alkene is inversely proportional to the reactivity. Reactivity कुछ भी हो सकती है. In the present example, it is a hydration of the alkene. ठीक है, in the bracket you people can say the reactivity. बहुत सीधी सी बात है कि less stable alkene जो होगी वो कहेगी कि मैं रिएक्ट ही कर लेती हूँ, शायद स्टेबल हो जाऊं. Less stable alkene will undergo hydration fast. Okay, less stable alkene will undergo the hydration fast. Now you people can check it out. तो stability of alkene के बेस पे इन दोनों में से कौन सा ज्यादा stable होगा? That would be more stable. बच्चा, here I am not talking about the carbocation. Here I am talking about this. Carbocation के बेस पे आपका बाकी तो हो गया. तो this is less stable. तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? फिर less stable का. तो after D you will be having B, then you will be having C, and then is a A. So this is a rate of the acidic hydration of alkene. Yes, everybody got it or not? Got it ma'am. Yes ma'am. Any problem beta? Any doubt in this question? इस तरह का question आता है if you are taking this method of preparation. अच्छा, एक question मुझे इससे आपसे और पूछना था. The same, everything is same regarding the alkenes only. वैसे ये question GOC का है. If you are having this, तो इसको मैं ऐसा करती हूँ कि इसको हम बना देते हैं first question, and here I am going to take the second one. Same reactant is there. We are having ethene, we are having 1 butene, we are having the 2 butene, and in the last we are having
ये ले लो, चलो सी, चल इसका जरूरत ही नहीं है, इतने में ही समझ आ जाएगा। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में ज्यादा रिलीज होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताओ। रिएक्टेंट सभी सेम है, मींस आप इसको ऐसा सेटल कर सकते हो ना, द बोथ साइड्स आर H, बोथ साइड्स आर 1 R 1 H, both H, both R this and to 4 R this and that, इस तरीके से। हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन समझते हो बच्चा? दिस इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज। हाँ जी, इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज्ड when 1 mole of the water gets added to alkene, वो भी 1 मोल ही होनी चाहिए। तो कितनी, मतलब क्वेश्चन तो वही है हाइड्रेशन वाला, which is having the easy hydration, which is having a more rate of the hydration, उसका heat of hydration ज्यादा होगा। तो किसका लगता है आपको सबसे ज्यादा होगा ABC में? मैम ए का। आपने कैसे कहा? मैम क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड तो सब में है ना बच्चा। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, इसमें कंफ्यूजन सब बच्चों को रहता है। आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, पहले सारी बातें छोड़ो। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का क्या ऑर्डर होगा? सी इज मोर देन बी ए, यही होगा ना? यस। अब हमने क्या कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। जितनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी उतना वो कम रिएक्ट करेगी, जितना कम वो रिएक्ट करेगी उतना ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। यस और नो? यस मैम। है ना? तो फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या आंसर आ गया? मैम ए देन बी देन सी। ए बी सी। एंड वन मोर थिंग, कई बार क्या होता है, लेट इट बी इसमें -400 हीट रिलीज हो रहा है, -350 हो रहा है और -300 हो रहा है, एंड समटाइम्स द स्टूडेंट्स डू कि -400 इसमें हीट रिलीज हो रहा था मैम, बट हमने सी ऑप्शन को मैक्सिमम बोल दिया क्योंकि ये माइनस में था। ये वाला फैक्टर मैथमेटिक्स वाला पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अप्लाई नहीं होगा। You have to just keep this thing in mind, which is having the more negative value of the heat released, that is considered to be as a more heat. You don't have to go like this कि minus value is there, this is less or that. तो इसी को ही highest बोला जाएगा। तो is that clear? Yes ma'am. First question सब बच्चों को clear है कि how we have done the method of preparation and this that? Yes ma'am. ओके, एक क्वेश्चन इसका इस कैटेगरी का और आपको देंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया और आपके पास आ गया वाटर, नथिंग ऑन द एरो, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? दिस थिंग, वाटर, sulfuric acid on the arrow, this is a dilute one, what would be the product? CH3, CH, CH3, CH, double bond CH2, water, sulfuric acid on the arrow, dilute, what is the product? Very keenly you have to observe, then you have to answer. देखो बेटा, now it is a, मुझे ये बोलना चाहिए अब आपके पास फाइनल टाइम है, ये चैप्टर कभी डिस्कस नहीं होगा, मोरओवर आज के बाद ही नहीं होगा, क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम सीधा। तो जितनी ऑर्गेनिक सीख सकते हो सीख लो बेस से। ध्रुव, मुझे ना फर्स्ट का आंसर तुमसे चाहिए। ध्रुव, यस मैम। क्या आंसर आएगा फर्स्ट का? CH2 CH2। अच्छा, पलक तुम्हारा क्या ओपिनियन है? पलक, व्हाट इज द आंसर ऑफ ए? दिस इज नॉट द वे भाई, ऐसे तो बहुत टाइम लगाओगे तुम। कोमल, ए का क्या आंसर होगा? ओके, एनीबॉडी हु वांट्स टू गिव अ डिफरेंट आंसर एज द ध्रुव हैज गिवन? मैम CS2OH then CH3 Marconi। यही बोला है ध्रुव ने भी। देखो, यही, दिस इज अ थिंग दैट यू हैव टू लर्न थ्रू द मैकेनिज्म।
Whenever you do the mechanism, can anybody tell me the first step of the mechanism? मैम आइडेंटिफाइंग न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल. शाबाश शाबाश, जब तुम्हें ये बात पता है तो तुमने ये गलती कैसे कर दी? Till now, water is having the lone pair of electron, so this is a nucleophile which is having the lone pair of electron, and इसको तो कभी जिंदगी में आप electrophile नहीं बोलोगे. And this is having the pi bond, sigma and pi bond is there. सभी बच्चों को पता है कि alkenes undergo the electrophilic addition reaction. So if the electrophile comes to it and attack and gets joined, then it would be again nucleophile. तो तुम लोगों ने reaction कर कैसे दिया? मुझे तो ये नहीं समझ आया. अभी मुझे व्हाट इज तन्वी ने बोला कि मैम फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. तो जब आपके पास रिएक्शन में बोथ आर द न्यूक्लियोफाइल, देन हाउ यू पीपल आर गिविंग द प्रोडक्ट? तो यू शुडंट डू दिस मिस्टेक इन द नीट एग्जाम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये फर्स्ट स्टेप इस मैकेनिज्म का था. सल्फ्यूरिक एसिड मुझे ये भी नहीं डालना चाहिए बिकॉज द स्ट्रॉन्ग इज देयर. देखो ऑर्गेनिक बड़ी ईमानदार है भाई, जो होगा वही होगा. दिस वन. So first step is a H plus that actually initiate the reaction. H plus is there. अब इसमें H plus है ही नहीं है. यहाँ पे दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, तो यहाँ पे कभी भी अल्कोहल पेपर में नहीं बनाना. एल्कीन्स में वाटर का एडिशन सिर्फ तब होता है if the acidic conditions are there. If acidic conditions are there, then product, otherwise no product. This is what the mechanism says. Okay, what is the answer in B? What is the answer in B, beta? CH3 CH2. आगे. Then CH3. Yes, it is a select. बिल्कुल सही है, दोनों का आंसर सही है. बिकॉज इसमें तो कुछ करना ही नहीं है. मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा. मार्कोनिकॉफ रूल इज वन ऑफ द शॉर्टकट. आई अगेन से कि नेगेटिव को उस पे लगा दो. बट व्हाई द नेगेटिव गोज टू दैट? बिकॉज इट फॉर्म्स अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन. तो इस क्वेश्चन में बच्चा दोनों के पास एक एक था. तो बाय व्हाट थंब ऑफ रूल यू पीपल आर गोइंग टू डिसाइड कि किसके पास जाएगा? समझ पा रहे मेरी बात को? यहाँ है ना? Yes, ma'am. तो बच्चा इसमें तो सेम है. तो अगर कोई बच्चा, मान लो पलक मुझे आंसर देती है कि मैम यहाँ पे OH लगाता, तो वो भी ठीक है. आप इसका नाम क्या दोगे ना? IUPAC से देखो, इसका नाम है ब्यूटेन टूओल. ब्यूटेन टूओल इधर से लगाते तो भी ब्यूटेन टूओल होता. बिल्कुल सही. सी का आंसर कौन देगा? अक्षिता आई है आज क्लास में? दिखाई तो नहीं दे रही है. चलो एनी हाउ, बताइए क्या होगा थर्ड सी का प्रोडक्ट? एनीबडी? Ma'am, CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH, OH, CH3. किसी बच्चे का इससे अलग आंसर आता है? दिस इज द रॉन्ग प्रोडक्ट. तभी तो मैं बोल रही हूं, आएगा तो वही जो सिलेबस में है. तुमने भैया क्या बोले उसको, कितनी शिद्दत से उसको पढ़ा है, कितना समझा, वो मैटर करता है. और मैं एक्सपेक्ट करती थी कि आप लोग सही आंसर दोगे, क्योंकि तुमने मुझे ये सही आंसर दे चुके हो पिछली क्लास में. तुम ऐसा कर रहे हो, तो ऐसा कर रहे हो तो यू पीपल आर सो स्मार्ट कि तुम ऐसा बनाओगे. तो यहाँ पे CH3 लगाओगे. बच्चा ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है. बट मैंने क्या बोला? मार्कोनिकॉफ रूल इज अ शॉर्ट ट्रिक, but every step for stability of the carbocation rearrangement you have to do. तुम्हें हापुर पढ़ाया था H, PH and R. इसका क्या था? ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. हाँ या ना? यस और नो? Yes. तो बच्चा जी, तुम ये बात कैसे जिंदगी में भूल गए कि इसके बगल से हाइड्राइड हम पहुंचा दे उधर? तो अगर इसके बगल से हाइड्राइड वहां पे दे दोगे तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं बन जाएगा पॉजिटिव. और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा हियर. और अगर वो करके आ गया ना पेपर में तो गड़बड़ करोगे तुम. 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, फिर मारो OH. अब दे दो OH यहाँ पे, तो इसका प्रोडक्ट आएगा. व्हाइट कलर से लिख देती हूँ. मेरे नोट्स वही बच्चा पढ़ पाएगा जो बच्चा क्लास अटेंड कर लेगा, जिसे पता है. जिन्हें बिना क्लास अटेंड किए सिर्फ नोट्स देखे उसको कोई मतलब नहीं है. ऑर्गेनिक कभी भी नोट्स से नहीं आती है. तो दिस इज आंसर.
and I expect this shift, this rearrangement to done by all of you when you are considering the MR. Markovnikov rule, बार बार एक बार बोल रही हूँ, Markovnikov rule is just a short trick. The base of the reaction is the stability of the carbocation. So if the carbocation is a stable one, then you people have to do the rearrangement in order to get a more stable one. Otherwise question paper में गलत होगा. ये तुम्हारे प्रॉपर जिसको नीट लेवल क्वेश्चन बोलते हैं ना, वो है. पहले सवाल में 3 डिग्री और 1 डिग्री छट गए, दूसरा स्टेबिलिटी से करना है. अगले सवाल में स्टेबिलिटी आ गया और हीट ऑफ हाइड्रेशन आ गया. उससे अगले सवाल में आपके पास आ गया, पहले केस में नहीं बनेगा प्रोडक्ट और थर्ड में रीअरेंजमेंट होगा. यस और नो? यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर डुपर क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. पर्सनली मैं भी जब टेस्ट बनाती हूँ तो ये मैं डाल देती हूँ. रेट ऑफ, ये मतलब तुम मान के चलो कि अगर तुमने पेपर में नीट में ये वाला टॉपिक आता है और ये जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं ध्यान में रखे, तुम कभी भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे. आई कैन गिव इट इन अ रिटर्न. अगर आपको सारी बातें याद रह गई तो 4 ही बातें बताई हैं आज. हीट ऑफ हाइड्रेशन बताया, स्टेबिलिटी बताया, रीअरेंजमेंट वाला पिछला क्वेश्चन था और उससे पहले वाला था जिसमें हमने स्टेबिलिटी से छांटा था. रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अगर आपने ये सही किया ना तो दैट वुड बी गुड. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एक्सप्लेनेशन सही देना. हाँ, ये बिल्कुल प्रॉपर 4 मार्क्स का नीट का क्वेश्चन है. 2 होंगे. ये ए है बच्चा. चैप्टर बिल्कुल एज इट इज रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा जब तक आता ही नहीं है कुछ. बी, सी, बेटा ये H2 ही है और ये है डी. क्विकली गो फॉर द आंसर्स. चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगले मैकेनिज्म. इसका मैकेनिज्म लिखूं या समझ में आ गया? कैटायन बनाना है फिर नेगेटिव का अटैक कराना है. सबको पता है बॉन्ड को ही तो शिफ्ट कराना है. H+ आएगा, पहले H+ को वाटर पे लेके जाना है, ऐसे ऐसे दिस एंड दैट करके. चलो मैं बता देती हूँ, पता है ना कार्बोकेटायन वाला. इसका तो कुछ खास है ही नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा. अरे यस नो तो बोलो. Yes, ma'am. I have not written those things because it is very simple. H+ आएगा और आपके एल्कीन को शिफ्ट करवाएगा पहले एंड देन उसके पास ऑपोजिट चला जाएगा. हाँ जी, इसका आंसर बताओ. यू कैन टाइप योर आंसर इन अ चैट बॉक्स एंड यू कैन अनम्यूट एंड से. अभी कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है. दिस इज अ फाइनल प्रिपरेशन ऑफ नीट. आप बोल सकते हो क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है. बताओ जी. देखो मैकेनिज्म याद रखो, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर याद रखो, क्वेश्चन हमेशा आपका सही जाए. एक आंसर आया मेरे पास चैट बॉक्स में ध्रुव का, DABC. ठीक है ध्रुव, मैं अभी बाकी बच्चे आंसर कर लें फिर बताती हूँ सही है या नहीं है. बस एक ध्रुव, एक बच्चे का और आया है, देवेश प्रभात. ABCD. देवेश क्या बात है, बिना कुछ सोचे समझे मार दिया. एनीबडी एल्स? पलक, दीक्षा, कोमल, तन्वी, वैसे तो सभी को आंसर देना है. अच्छा एक आंसर रुको और आया मेरे पास, लेट मी चेक इट आउट. मेसी, ये मेसी कौन है? जो भी है मेरे पास स्क्रीन नेम मेसी आया. अच्छा ध्रुव एक्सप्लेन करो जरा, कैसे आपने कैसे दिया आंसर? ध्रुव अनम्यूट एंड एक्सप्लेन बेटा. ध्रुव का आंसर सही है और जिसका नाम मेसी है उसका भी सही है. बेटा कैसे बताया तुमने? Am I audible? Yes, ma'am. अच्छा इसका सही है तुम्हारा आंसर, कैसे किया तुमने?
तुम्हारी ना एकोइंग है आवाज। चलो आई विल एक्सप्लेन। अब क्या होगा ना बेटा, देखो इसमें इधर भी शिफ्ट हो सकता था, इधर भी शिफ्ट हो सकता था। अब तुम्हारा ये बोलेगा माइंड की मार्कोनिकॉफ रूल है, नेगेटिव इधर जाएगा, मतलब आपका जो ये वाला कार्बोकटायन फॉर्म होगा, ये वाला कार्बोकटायन क्यों फॉर्म होता है, दूसरी साइड क्यों नहीं शिफ्ट होता, कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? Why the carbocation is formed on this carbon which is attached to the benzene ring and is stable? मैम रेजोनेंस को Yes, sp12 yes, diacetyl yes. resonance factor। तो मैं एक लाइन में तुम ये भी बोल सकते थे कि मैम बेंजाइल कार्बोकटायन है ना, बेंजाइल ही होता है ना, CH2 होता है, वो तो अच्छा के कुछ कुछ लगा हुआ है, तो बेंजाइल कार्बोकटायन है। बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो दैट्स व्हाई इधर शिफ्ट होगा। तो इतना तो तुम्हारा काम सही हो गया, स्टेबलाइज्ड। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। जो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन है बेटा जी, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप्स पे। if you are having the electron withdrawing group, the electron withdrawing group will withdraw the electron, and if the electron withdrawing group will withdraw the electron, then how can they stabilize it? पॉजिटिव को बढ़ा देंगे, पॉजिटिव को खत्म करने वाला स्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m प्लस Hc प्लस I, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस m माइनस Hc एंड माइनस I। गॉट इट और नॉट? बाकी तो बच्चा सिर्फ इफेक्ट लगाने थे और कुछ भी नहीं था। हेयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो दे विल शो द प्लस m। हेयर NO2 का तो माइनस I माइनस m होता है। Cl का जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वही मैं लिखूंगी, दैट इज माइनस ऑफ I, इसमें कुछ भी नहीं है। तो काम बिल्कुल सीधा था, तो सबसे ज्यादा D आएगा क्योंकि इसमें प्लस m है, सबसे कम C आएगा क्योंकि इसमें दोनों माइनस है, उसके बाद A आएगा क्योंकि उसमें कोई ऑपोजिंग फैक्टर नहीं है, फिर B आएगा, तो DABC इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? यस हाँ जी, प्लस HCl लिखा है आप। क्या कह रहे हो बेटा? मैं प्लस m के आगे क्या लिखा है आप? ये कह रहा है इसके आगे मैम प्लस m के आगे मैंने HC लिखा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कंजुगेशन होता है ना, पर यहाँ पे तो किसी में हाइपर कंजुगेशन है नहीं है ना। यस मैम। ये तो मैंने ये लिखे हैं कि किस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस किस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। HC हाइपर कंजुगेशन होता है, मतलब सभी इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे वो लिखे हैं, ठीक है बेटा? यस मैम। चलो गुड। तो ये हमारे क्वेश्चन थे किस मैकेनिज्म से रिलेटेड, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से रिलेटेड। अब हम आते हैं अगले मैकेनिज्म पे। सेकंड, तो मैं एक, ये मैं बार बार ऊपर क्यों लिख रही हूँ रिएक्शन, because I yesterday got the information from the office that some of you were busy in doing the practicals. When I inquired ना कि सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो that's why I am simply writing the reactions above, because कई बच्चों ने अगर नहीं अटेंड किया है स्कूल की वजह से, तो उन्हें पता लग जाए किस रिएक्शन के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है? एक हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल from the aniline, जिस प्रोसेस को तुम बोलते हो डाईएजोटाइजेशन। देखो बहुत ज्यादा तो इसका मैं जेई में ही कराती हूँ, क्योंकि आपके उसमें जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है वैसा ही कराते हैं, पर फिर भी आपको मैकेनिज्म बता के मेन इसका बता देती हूँ ताकि आइडिया हो जाए। अब व्हाट वाज अ प्रोसेस, ये प्रेपरेशन लिख देती हूँ, क्वेश्चन इसके या मैकेनिज्म बाद में बताती हूँ। एनिलीन वाज देयर, हाँ जी हाँ जी, NH2 was there and इसमें आता है NaNO2 और HCl। HCl और ice cold conditions। उसके बाद क्या होता है? N2 पॉजिटिव N2 प्लस होता है बेसिकली, तो फॉर्म Cl नेगेटिव सपोर्टिंग एक्टर है इसका, जिसको BDC बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर वाटर के साथ इसको वार्म कर देते। रिएक्शन तो सारी क्लास को आता होगा, क्योंकि अभी अभी तुम NCERT पढ़ के पेपर दे के आए, तो बन जाता है फिनोल। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। लास्ट क्लास में हमने किया है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल करा दिया था ना मैंने? यस मैम। ओके ओके, तो सबसे हो गए थे सल्फोनिक एसिड वाला, BDC वाला, क्यूमीन वाला, हो गए थे ना ये सारे? हाँ हो गए थे, मुझे याद है। अब इसका मैकेनिज्म, बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने मैकेनिज्म नहीं कराया था, तो इसमें से 2-3 सवाल पूछूंगी, पहले मैकेनिज्म देख लो। ये चीजें क्या काम करती हैं, हाउ दे विल एक्ट। NaNO2 and HCl when they will react,
तो आंसर आएगा NaCl plus HNO2. HNO2 is called as a nitrous. Yes, let's take a structure of it. जब भी आपके पास क्वेश्चन में नाइट्रोजन का कंपाउंड होना बेटा, और मैं बार बार ये बोल रही हूँ, ये बातें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी भी नहीं, ठीक है? तो इसलिए सुन लो. इस पिछले के तो 3 क्वेश्चन हो गए, इसके क्वेश्चन तब कर पाओगे जब मैकेनिज्म ध्यान से देखोगे. HNO2 इज देयर. अब जब आपके पास क्वेश्चन में 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन होना, तो एक तो बच्चा बेझिझक बिना सोचे समझे OH बना दिया करो, बाकी डबल बॉन्ड हो. इलेक्ट्रॉन काउंट पूरा कर लो, 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन काउंट पूरा हो गया. चलो एनी हाउ, अब इसमें तुमने क्या करना है, कोई एक एसिड तो होगा नहीं क्वेश्चन में, है ना? लॉट्स ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स वुड बी देयर. तो HCl आएगा सबसे पहले. अब HCl का अटैक किस साइड पे होगा, कौन मुझे बताएगा? बताओ लीड GOC लगा के, किस साइड पे HCl का अटैक होगा? OH की सर. शाबाश. कैसे पता तुम्हें? तुमने इस ऑक्सीजन पे क्यों नहीं किया या नाइट्रोजन पे क्यों नहीं किया? रीजन होता है हर बात का. हाँ बोलो. मैं वाटर का रिमूवल हो जाए. पहली बात तो सही है जो इस बच्चे ने बताई है कि मैम मुझे पता था वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर, परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होता है. तो बेटा जी जब परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होता है तो दिस इज हैविंग अ लेस टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. देन ऑफ कोर्स योर पॉइंट इज राइट. तो यहाँ पे होगा H का अटैक. तो दिस इज OH एंड प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा. देन इज N डबल बॉन्ड O एंड दिस. तो यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव तो बियर नहीं करेगा ये, तो देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज देयर. अब ये वाटर मॉलिक्यूल ना मुझे थोड़ा और अच्छे से बना देना चाहिए, बिकॉज वाटर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाता है ऐसे. तो आप देखो नाइट्रोजन पे क्या इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया, नाइट्रोजन पे 4 नहीं हो गए, तो 4 हो गए, तो ये आ गया प्लस. अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, NO प्लस है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और ये रिएक्शन है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये ग्रुप प्रमोट करता है NH2. क्यों? Who is going to tell me? Electrophilic substitution is promoted, facilitates with the help of NH2 group which is attached to the benzene ring. Why? अरे बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने. E+ का अटैक जब NH2 लगा तो फास्ट होगा. क्यों? में प्लस M इफेक्ट होता है. यस. एक दो बच्चे आंसर देते हैं, बाकी क्यों नहीं दे रहे हो भाई? NH2 में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस M से रेजोनेंस शो करेगा बेंजीन के साथ. तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ऑर्थो पैरा पोजीशंस विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिच. तो इलेक्ट्रॉन रिच बन गई तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा. इसको बोलते हैं कि NH2 ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग. क्या बोलते हैं? एक्टिवेट द रिंग. एक्टिवेटिंग ग्रुप. हाँ, एक्टिवेटिंग ग्रुप. कहाँ कहाँ पे? ऑर्थो एंड पैरा फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. यही तो बेस से क्वेश्चन आना है, और कैसे आता है क्वेश्चन? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल क्या है. मैंने बहुत बच्चों को लिखते देखा है कि इसका इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है, बहुत बच्चों को, और पहला ही ऑप्शन दिया होता है, गलत मार आते हैं. तो NO2+ निकला क्या तुम्हारे पास? क्या निकला? NO+. समझ में आ रही कहानी? नहीं आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम. अब आओ फिर आगे. चलो भगाओ इसको. बिल्कुल GOC अप्लाई करते चलो. इट इज नॉट एट ऑल टफ. दैट वाज ऑलरेडी देयर. एंड NO+. क्या कहती है तुम्हारी GOC? इसके इलेक्ट्रॉन काउंट भी मार दो तुम चाहो तो. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मैं पूरा ही लिख देती हूँ ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि कैसे कैसे जुड़ा है. चाहे थोड़ा एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, पर मैकेनिज्म सीख जाओगे, फिर अगले चैप्टर में कम मेहनत करनी पड़ेगी. ये देखो, अब मेरे पास बहुत से बच्चे, कल भी मैंने एक क्लास को JEE वाले स्टूडेंट्स को ये काम करवाया, और उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम यहाँ पे भी तो दोनों पे लॉन पेयर है, तो व्हाई दे आर नॉट वन इज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज यू वर डूइंग इन द अर्लियर केसेस. तो बच्चा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. कभी भी वाटर देख लो, वाटर में 2 लॉन पेयर होते हैं,
तो एक लोन पेयर देने के बाद अगर ये प्लस हो जाता है किसी के साथ जुड़ के, तो ये दूसरा लोन पेयर थोड़ा देता है। किसी के घर में एक बार चोरी करोगे, दूसरी बार तो वो सीसीटीवी लगवा लेगा भाई, ठीक है। तो ऑल्दो इट इज हैविंग अ लोन पेयर, बट द स्पीशीज व्हिच इज हैविंग अ 2-3 लोन पेयर्स, देती वो एक ही है। Why don't you people understand ki by the donation of the one lone pair there occurs a positive charge on it, and when there is a positive charge, how can it go for the nucleophile? Although it is having the lone pair, but it will act as an electrophile only. तो स्टेप सिर्फ यही होगा जिंदगी में, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और आप बोलोगे बेंजीन पे क्यों नहीं गया, तो मैं आंसर दूंगी वहां पे नॉन बॉन्डिंग है, वहां पे पाई है। ये सब कहानियों का आंसर जीओसी से मिलता है। जीओसी भगवान है, मान के चलो उसको। अब देखो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले नहीं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, तो ये एज इट इज है। अब देखो इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, हो गया ये लोन पेयर एज इट इज। ये वाला नाइट्रोजन पॉजिटिव हो गया। इफ द नाइट्रोजन इज पॉजिटिव, हु इज गोइंग टू मेक अप द डेफिशिएंसी? सोचना ही नहीं है भाई, H। इफ द नाइट्रोजन इज पॉजिटिव, द डेफिशिएंसी इज गिवन बाय H, तो H प्लस को बाहर फेंको। दिस इज NH, इट इज अगेन this, ठीक है। this is formed। ठीक है, ओके। who can say what would be the next step? क्या होगा भाई अगले स्टेप में? आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है? टोटोमेरिज्म। मैं आपको ना ये ABC की फॉर्म में या PQR की फॉर्म में बोल देती हूँ। P था, Q था एंड R था, यहाँ पे एक H लगा हुआ था। तो टोटोमेरिज्म क्या होता है ना, 1-3 प्रोटॉन शिफ्ट होता है। देखो हाइड्राइड शिफ्ट वाज 1-2, बट ये प्रोटॉन है नॉट हाइड्राइड। 1-3 प्रोटॉन शिफ्ट। और ये कैसे होती है, इसको ऐसे सीखो। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो जब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये इसको पकड़ लेगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, PQ में डबल बॉन्ड और R में सिंगल बॉन्ड H। समझ में आई कहानी, नहीं समझ में आई? यस और नो? यस मैम। तो बच्चा, if you got this thing, then can you apply this thing to this? This is H, this will go here, this will go here, and it will get attached over to there. That means the answer would be this. N 2 electrons would be there. ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं छेड़े हैं हमने, and OH. And this is a more stable form. Why it is a more stable form? Because acidic conditions are there, and ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो there are the again chances for the loss of the water. Delocalization तो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही। NOH2 बच्चा, plus there is a loss of the water, तो you are reaching to your product, and this double bond, मुझे थोड़ा सा एरो छोटा कर देना चाहिए। N double bond N, ठीक है। water is out, 2 electrons were already there, don't forget this। देखो 1 2 3 4 there is a positive charge, तो जब घर में ही पैसा हो तो बाहर से मांगना ही नहीं है। ऐसे लास्ट प्रोडक्ट में यहाँ लिख देती हूँ। See, this is the nitrogen which is donating its lone pair of electron over here, and this is positive। इसी चीज को तुम ऐसे करके लिखते हो, ऐसे करके N2 plus is actually the product, otherwise Cl negative is a supporting actor, वो तो मीडियम में है, you can say। ये देखो H plus को यूज किया था ना, यहाँ पे मैंने कहाँ पे किया था H plus को यूज, हाँ यहाँ पे H plus को यूज किया था, तो माइनस ऑफ Cl नेगेटिव हुआ था, तो वो Cl नेगेटिव सपोर्टिंग एक्टर है, वो यहाँ पे आ जाता है। तो दिस इज अ प्रेपरेशन ऑफ BDC, एंड आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ अ BDC मैं इसको नंबर डाल देती हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8। मैं हर बार बच्चों को बोलती हूँ कि मेरे को मतलब नहीं है तुम्हें मैकेनिज्म आता है या नहीं, लिखना आया नहीं आया, समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। तो इज दैट क्लियर? अब इसमें वाटर से N2 के ऊपर प्लस है, और इसमें एक प्लस फैक्टर ये भी है, बिकॉज व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ द N2 प्लस ना, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, N2 गैस रिलीज होती है, तो भी स्पॉन्टेनियस होता है। तो बाकी तो Cl को भूल जाओ, N2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। चलो ये भी स्टेप कर देते हैं, रुको। अब ये बना लिया तुमने, लास्ट प्रोडक्ट है ना, ये बन गया तुम्हारा
N2+ कुछ ऐसा करके बन गया। तो N2+ तो बना लिया बच्चे। अब उसमें आया तुम्हारा वाटर, है ना, वाटर के साथ तुमने इसको वार्म किया, तो ये तो लेके जाएगा। तो तुम्हें पता है वाटर इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड तो नहीं है खैर, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये OH2+ हो जाएगा। अब इसमें से H+ चला जाएगा तो OH आ गया। मतलब बाकी काम तो पानी भी कर देगा, क्योंकि फिनाइल कार्बोकेटाइन तो कभी बनता ही नहीं है, दैट इज हाईली अनस्टेबल। तो ये फिनॉल बन गया। यस और नो? यस मैम। अब इस क्वेश्चन के मैकेनिज्म से ज्ञान क्या क्या हुआ कि दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NO+ is actually the electrophile, tautomerism occurs and N2+ is there। तो मतलब एक बार पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। आपको मैकेनिज्म लिखना आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, nobody is going to ask you, but you must be clear in this your mind कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। तो when you see the internal picture of the reaction ना, तो आपका ब्रेन उसको पकड़ता है कि रिएक्शन को लर्न करना है। अगर मैं सीधा ही लिख दूं कि इसे BDC बना दो जैसे NCERT लिखती है, तो फिर हम पकड़ते नहीं है कि क्या हुआ है। अब मैं इसका आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, तो इफ यू अंडरस्टूड दिस तो यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। हाँ जी, चलें आगे क्या? यस यस मैम। मैम। देखना है दोबारा, लो एक बार देख लो। ये था पहला स्टेप, ये था दूसरा स्टेप, दूसरा तीसरा जो भी थे, बहुत सारे। ये तो मैंने तो कुछ फालतू भी लिखे हैं तुम्हें बताने के लिए, थोड़े में भी हो सकता है। और ये है नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं अपना क्वेश्चन लिखूं? यस यस मैम। मैम। ट्राई पूरा करना है बच्चों। प्रोडक्ट बनाओ। X नेगेटिव है, इसका प्रोडक्ट बनाओ। इसमें ना बेटा दो कंडीशंस हैं। पहली तो है BDC वाली, NaNO2+ HCl एंड आइस कोल्ड। आइस लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेगा नहीं ये क्वेश्चन आपको कहीं, तो यहीं से नोट करके चलो, पेपर में डायरेक्ट आता है। ये B स्टेप है। A स्टेप है वही, B स्टेप है आइस कोल्ड, सॉरी B स्टेप है ये BR वाला। इसमें भी A स्टेप तो वही है, सोच समझ के करना, सोच समझ के करोगे तो हो जाएगा। और दूसरा है क्या, ले लो वाटर ले लो। चलो मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूँ, गो फॉर सॉल्विंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बहुत ज्ञान मिलेगा इसका, ऑर्गेनिक का इससे। जिसका भी हो गया अनम्यूट करके हो सकता है। चलो, नोट अ इशू, गिविंग यू कंप्लीट 1 मिनट, सॉल्व इट। 1 मिनट चाहिए भी क्वेश्चन को, इतनी इजीली नहीं है। Dhruv, whatever you have written, I am not getting it. OH on the place of NH2 in A. अच्छा अच्छा अच्छा, alcohol in the place of NH2.
अगर OH इन द प्लेस ऑफ NH2 आना होता तो ये क्वेश्चन 9th क्लास को आना था, नीट को नहीं आना था। नो, वो तो बहुत सीधी कहानी कर दी तुमने, ऐसा थोड़ा आंसर देंगे। वो भी होता है एक ऑप्शन, पर वो कोई भी नहीं टिक करेगा। मैं एक बताती हूँ, शायद हो सकता है कि तुम्हें आइडिया ना हो इस चीज का। ये है पहले वाला 4 वाला था ना, एक बताऊंगी फिर वही स्लाइड कर दूंगी, फिर आप ट्राई करना, बिकॉज आपका ट्राई करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट ट्राई ना, यू वोंट गेट। ओके, हु कैन गिव द आंसर ऑफ अ फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट का बताना। फर्स्ट का आंसर तो बता दो, ये तो सबको आता है। अभी तो सिखाया, ये सारा काम NH2+ देता है, सिखाया ना? यस मैम, ठीक N2 है, फर्स्ट ईयर। हाँ बिल्कुल। अब आगे आई कहानी। N2+ is highly unstable, so it has to abstract this. So when it will abstract this, there will be the positive charge on it. When there is a positive charge on it, so this is a carbocation, and here comes the question for the stability of the carbocation. अब stability of the carbocation के लिए करने पड़ते हैं rearrangement. And how can you go for this rearrangement? कार्बोकेटाइन के, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट वाले कार्बन को बोलो अल्फा, adjacent to that is a beta. You can say this as beta, you can say this as beta, both are beta. यहां तक किस किस बच्चे को समझ में आया जो मैंने बोला यहां तक? क्विकली आप सुनो मेरी बात। अल्फा से बीटा आपको करना है माइग्रेट, अल्फा टू बीटा माइग्रेट करना है। तो अल्फा टू बीटा ये वाला स्टेप आता नहीं है, मतलब कोई टीचर लिखता नहीं है, पर मैं लिख देती हूँ बिकॉज थोड़ा सा अभी आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, देखो ये बनाना नहीं है, मतलब थोड़ा गलत ही है ये। अगर अल्फा टू बीटा माइग्रेट करेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा प्लस, और बीटा क्या हो जाएगा माइनस। फिर जब ये प्लस माइनस हो गए ना, फिर ऐसे जोड़ के कर देते हैं रिंग एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन तब करना है जब 4 से 5 नंबर वाला बन रहा हो, 1 2 3 4 5। तो आपके पास ये आ जाएगा 5 मेंबर का रिंग। ये तो प्लस माइनस खत्म हो गया और एक कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहले स्टेप का आंसर है। तो जब एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब देखो क्या था आपके पास, तो पानी था ना। पानी वाला तो स्टेप आप 1 मिनट में कर लोगे, OH लगा लोगे। मैं वाटर का रिमूव करके नहीं कर रही हूँ, सीधा ही कर देती हूँ कि OH लग जाएगा। तो दिस इज आंसर। जो अभी ध्रुव ने आंसर दिया ना, वो पेपर में पहली ऑप्शन होती है, वो कभी भी टिक नहीं करना। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। सी वाला होता नहीं है, तो ये C है और ये D है, ये एक्स्ट्रा लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिंग एक्सपेंशन। और ये जो पूरी कहानी है, इस रिएक्शन का नाम है डैमजिनोव रिएक्शन। मतलब एनसीईआरटी बताती नहीं है इसको कि इसका नाम क्या है, सिलेबस में नहीं है, बट होता है। अब आप बताओ कि आपको ये बात क्लियर हो रही है कि मैंने कैसे कैसे किया, किस किस स्टूडेंट को क्लियर हुआ? यस मैम। N2+ पॉजिटिव चार्ज, प्लस एंड माइनस, दिस। अब ये पेज लिख लिया या देखना है अभी? चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ दूसरा। अब तुम यही काम ना ये वाले के साथ करो। अब मुझे सेम करके बताओ, थिंक अबाउट इट। सेम कंडीशन, गो फॉर। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, 1 मिनट भी ज्यादा ही है, दोनों करो बाकी जल्दी।
Yes, who is going to tell me the answer of this question? Means B1. I have given you the hint already. अच्छा, पहला स्टेप बताओ. What is the first step? Meant to. N2 पॉजिटिव बनेगा। उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा उनके अनस्टेबल। ठीक है. यही किया तुमने पहला. यस अब आगे आंसर आ गया X नेगेटिव. अब आगे तुम लोगों ने क्या आंसर दिया? ईमानदारी से बताओ, ऑनेस्टली, व्हाट द आंसर यू हैव गिवन इन नेक्स्ट स्टेप? X जुड़ गया यार, इसको निकाल दिया। हाँ, अब आप लोगों ने दो तरह के आंसर एक्सपेक्टेड है आपकी क्लास से. पहला आंसर तो कुछ बच्चों ने जैसे मैंने किया अल्फा बीटा करके किया होगा, और कुछ बच्चों ने जैसे कि अभी एक बच्चा बोल रहा है कि हमने सिर्फ X जोड़ दिया यहाँ पे. यहाँ फिर अगर ध्रुव पीछे वाला आंसर दे रहा था, वो वाला आंसर इसमें होगा. क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हें एक और बात पता होनी चाहिए कि ये वाला पता क्यों हुआ था कि 5 membered rings, 5 membered rings are extra stable. 5 member रिंग एक्स्ट्रा स्टेबल है. जिस बच्चे को आता है बहुत अच्छा, नहीं आता तो ये याद रखना, 5 मेंबर सबसे पहले बनती है, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ये लेस स्टेबल होती हैं. तो 5 मेंबर रिंग में तो रिंग एक्सपेंशन करना है, पर अगर तुम्हारे पास यही क्वेश्चन 6 मेंबर में आ गया तो तुम 7 मत बनाया ना पेपर में, तो आपका बनेगा ये. ठीक है. आप ये वाले में बताओ, सी वाले में क्या होगा? सी वाले में पहले यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 से 6 पे नहीं जाना, 5 ऑलरेडी स्टेबल है, तो 5 से क्या बना के आओगे तुम पेपर में? ये OH. 5 छोड़ना है। हाँ, OH लग जाएगा, बस यहाँ पे पानी है ना. तो ये तीनों को एक क्वेश्चन और कराना है इसका. तो ये तीनों क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन वाज अ डिफिकल्ट वन, डिफरेंट वन, जिसमें रिंग एक्सपेंशन होके 4 to 5 जा सकते हैं ना, 5 to 6 जाओगे ना 6 to 7 जाओगे. अब एक लास्ट क्वेश्चन, फिर ये कंप्लीट है. इधर देखो, अगर तुम्हें लेटर सपोज कि पेपर में ऐसा आ गया, ये डी है, डी है, ऐसा 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 ऐसा. Now this question is different. The first conditions are NaNO2, ये मैं कर ही देती हूँ बिकॉज इतना टाइम नहीं है हमारे पास. NaNO2 और HCl ले लिया, आइस कोल्ड है ना. पहली कंडीशन तो यही है. तो पहला तो तुम पेपर में यही करके आओगे कि नहीं? Yes ma'am, N2 पॉजिटिव। हाँ, तो अब तुम ऐसा करोगे, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव के साथ वाले को अल्फा, इसको बीटा, अल्फा टू बीटा ऐसा. तो अल्फा टू, ये मैं बना देती हूँ अभी इंटरमीडिएट स्टेप, बिकॉज अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा. हाँ, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और अब इसको तुमने मिलाना है ना. तो अगर तुम इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा? कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, और इसके आगे ऐसे पॉजिटिव. तो अब पानी है क्या? पानी होगा शायद, पानी है या एक्स है, कुछ भी है, तो आपके पास ये बन जाएगा. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है. वो क्या पॉइंट है? वाटर ले लो, OH. अब 3 मेंबर्ड रिंग कभी भी स्टेबल नहीं होती. 3 membered ring are highly strained. Membered rings are highly strained. Are highly strained. तो मैम अगर highly strained है तो आपने क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया, ये वाली चीज होती है exceptionally stable. तो ये बिल्कुल GOC की बातें हैं. Why this is exceptionally stable? ये होते हैं bent bond. इनमें होता है P करेक्टर ज्यादा. ये जो येलो कलर के मैंने ओवरलैप दिखाई है ना, इनमें होता है हाई पी करेक्टर. हाई पी करेक्टर मतलब इनकी डोनर एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इसको इजीली डोनेट हो जाते हैं. मतलब कभी, अब ये वाला कभी भी स्टेबल नहीं है. ये क्या है? हाईली अनस्टेबल. समझ रहे हो मेरी बात को? वेदर यू आर गेटिंग द डिफरेंस और नॉट? यस मैम. ये वाला जिंदगी में कभी नहीं बना के आना, मतलब ये प्रोडक्ट को कभी टिक नहीं लगा के आना तुम्हें कि यहाँ पे कुछ तुमने वो कर दिया, यहाँ पे लगा दिया.
पर ये अलग चीज है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बनाना। पर अगर ऐसा बनता है तो मैं रेड कलर से कह देती हूँ ये है एक्सेप्शनली स्टेबल, क्योंकि इसमें होता है हाई पी करेक्टर, इसलिए ये इसको स्टेबलाइज कर देता है। ये लेटरल ओवरलैप हो जाता है इसमें, पी करेक्टर ज्यादा, एस करेक्टर में तो डोनरेबिलिटी कम होती है ना, इसलिए इसमें ये प्रोडक्ट बनाना है। बस जितने 4 क्वेश्चन कराए हैं ना, ये मोर देन है, इनफ, मोर देन मतलब डेमस्नोफ से इससे ज्यादा नहीं आता है। या तो आपको सिंपल आएगा, सिंपल आया तो पूरी कहानी मैकेनिज्म तुम्हें आता है। अगर रिंग एक्सपेंशन आया तो 4 से 5 पे जाओगे, ना तुम 5 से 6 पे जाओगे, ना 6 से 7 पे जाओगे। हाँ, अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो तुम 4 से 3 पे आ जाओगे। रुको, कहाँ गया, 4 से 3 पे आना है। क्यों आना है? क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो ये है तुम्हारे सेकंड मैकेनिज्म का आंसर, ठीक है। पहले वाला हो गया तुम्हारा क्या था भाई, हाइड्रेशन के 4-5 क्वेश्चन, और ये हो गया सेकंड वाले का। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नो मैम। थोड़ा टाइम लग गया आज मुझे, मतलब लंबा खिंच गया लेक्चर। चलो, आना समझ आना जरूरी है, इसी में थोड़ा कम लगा लेंगे। अच्छा, अब एक रिएक्शन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपका। आपको पढ़ाया था ना लुकास टेस्ट वाला क्वेश्चन? यस मैम। लुकास टेस्ट, इसके भी क्वेश्चन तो बहुत है, आप कराने वाली चीजें तो देखो बहुत है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होल वाला डिफरेंस, क्या कह रहे हो? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी के बीच में डिस्टिंक्शन करनी है। अच्छा रुको, एक पहले और डिफिकल्ट करा देते हो इसको, फिर लेके जाऊंगी। थोड़ा सा ना, मतलब आज का लेक्चर आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा लंबा खींच गया है, एज पर प्लानर ये हो जाना चाहिए था, पर चलो, मेन चीज एक्चुअली नई चीज हो तो टाइम लग जाता है। अब मैं दोबारा एक मैकेनिज्म तुम्हें और करा रही हूँ, 2 फिर नेक्स्ट क्लास में करूंगी। वो जो मैकेनिज्म है दैट इज, आपने रिएक्शन विद द मेटल्स किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला? उसके 4-5 क्वेश्चन है मेरे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। यस मैम। रिएक्शन बताओ पहले, रिएक्शन कर लेते हैं कि कोई बच्चों ने क्लास नहीं की है। रिएक्शन विद द metals to form Grignard reagent, किया हुआ है ये, ठीक है। अब कैसे किया था रिएक्शन, व्हाट यू हैव डन, बताओ फटाफट। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन था, कैसे किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ? मैम अल्काइल ऐड लिया था मैं, आरएम कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का लिया था, फिर मैं उसका जो अल्काइल वाला ग्रुप था उसका अटैक कार्बन वाले पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा किया था ना, कुछ RX + Mg यस मैम। in the presence of the dry ether that gives the RMgX, और RMgX तुम्हारा बना था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आगे जाके तुमने किसके साथ रिएक्ट किया था, कुछ इसके साथ, और फिर बना था तुम्हारा, यहाँ पे बना था RCH2OH, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। ऐसा किया था ना रिएक्शन? यस मैम। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसके कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ मैकेनिज्म बेस्ड। ये हुआ कैसे होगा? मैं ना ये बात बहुत बार बोलती हूँ क्लास में कि जब आपका कोई रिएक्शन हो जाता है ना, उसका प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो नेचुरल चीज है ना। रिएक्शन मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जिंदगी में होता था, हो गया, ये बन गया। तो अब आपको जो मैकेनिज्म, प्रपोज्ड मैकेनिज्म होता है ना, वो एक्सप्लेन करता है जो प्रोडक्ट बना है। इसको ना बच्चे उल्टा लेके चलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाती हूँ तो ये बात बोलती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल नहीं बना, पहले मॉलिक्यूल बना, हाइब्रिडाइजेशन वाज देयर टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल। तो इसलिए अब भी बोलती हूँ कि पहले आपका रिएक्शन हुआ, मैकेनिज्म वाज कहानियां, मैकेनिज्म तो कहानी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब ये कैसे बना होगा, लेट्स चेक इट आउट। इसके बारे में 2-3 बातें हैं, फटाफट से ले लेंगे, आज ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखो, पहले तो तुम्हें ये तो समझ आ रहा है कि R और Mg में बॉन्ड बन रहा है और Mg में X में बॉन्ड बन रहा है, पर ये स्पेशल बॉन्ड है। व्हाई दिस इज सो स्पेशल? मैग्नीशियम पहले करता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मैग्नीशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कितने बच्चों के माइंड में ये बात चल रही है कि मैम हमें तो पता है कि मैग्नीशियम 2+ होता है, कितनी दुनिया को लग रहा है? सबको पता है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने हैं, क्योंकि ये वाले में आधा कोवलेंट और आधा आयनिक है। 2+ लूज करोगे तो सारा आयनिक बन जाएगा। तभी मैं बोल रही हूँ पहले प्रोडक्ट पता होना चाहिए, तब मैकेनिज्म पे जाना। सबको बात समझ में आ जाएगी मैं अब क्या कह रही हूँ। अब ये है R और X।
आर और एक्स में से बच्चा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? अच्छा सुनो एक बात, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पहले ये 282 था, हाँ या ना? यस मैम। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो अब ये क्या बन गया? 281 बन गया। यस मैम। इस पे और एक डॉट और आ गया। यस मैम। तो अब ये वाली स्पीशीज बनती है इस मैकेनिज्म में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में ये कहानियां नहीं है तो याद रखना। तो ये बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब आर और एक्स में तो तुम्हें ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने आप बोल दो कि मैम एक्स गुड लीविंग ग्रुप है और एक्स नेगेटिव होता है। म्यूट पे रहना बेटा। तो एक्स गुड लीविंग ग्रुप है और एक्स नेगेटिव होता है, तो ये एक्स तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या यस कहते मैम। हो? अब तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे। अच्छा आर के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई? एक। इस बॉन्ड में एक उसका था ना, अपना एक ले गया, तो जो अपना एक ले गया वो क्या बन गया? नेगेटिव। अब आर के पास जो एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम हुई है ना, वो इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देता है मैग्नीशियम। तो अब तुम्हारे पास आर आ गया, पर आर क्या बन के आया? रेडिकल। रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब देखो बहुत, जो तुमने एबीसीडी बनाया सबको मिला दो, इलेक्ट्रॉन तो तुमने कंज्यूम करा दिया, तो ऊपर तुम्हारा बना mg डॉट प्लस, इधर तुम्हारा बना r डॉट, और इधर मुझे इसको इधर लिखना चाहिए क्योंकि सीधा फार्मूला आ जाएगा फिर। सबसे पहले तुम्हारा बना r डॉट, फिर बना mg डॉट x, फिर तुम्हारा बना x नेगेटिव। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? यस मैम। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जब दो डॉट डॉट मिलेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? Yes, ma'am. ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। जब प्लस माइनस मिलेंगे तो भी बॉन्ड बन जाएगा अट्रैक्शन से। Yes, ma'am. और ये कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। हाँ, ये इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है, ये इस मैकेनिज्म की खासियत है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgx में से R और Mg का बॉन्ड कोवेलेंट है और Mg और X का बॉन्ड क्या है? आयोनिक है। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। Yes, ma'am. अब अगली कहानी सुनो। अगली, अब ये तुम्हें पेपर में पूछे ना पूछे, पर तुम्हारे दिमाग में ये ज्ञान होना चाहिए कि मैम ने ऐसा बताया था। अब इसका काम कहाँ है, यूज कहाँ पे आएगा? जैसे एक क्वेश्चन आया था, वैसे तो देखो ये क्वेश्चन हायर लेवल पे आया, पर मैं तुमसे पूछ देती हूँ क्योंकि हायर लेवल पे भी पूछा तो बेसिक ही जाता ना, रिएक्शन तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बदल थोड़ा जाएगा। क्वेश्चन आया था, व्हाई ड्राई ईथर इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन इसका आंसर देना पसंद करेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्यों यूज किया जाता है? ड्राई ईथर को क्यों यूज किया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन? इसका Ma'am, आंसर, the presence of moisture trace, ma'am, decompose हो जाता ये है. सारी चीजें आपकी कहानियां हैं। देखो एक्चुअली में इसका आंसर क्या है, तुमने इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि ये प्लस माइनस है। यस मैम। प्लस माइनस में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती। जानते हो ये बात? यानी कि मैं यहाँ पे अगर बॉन्ड नहीं भी लगाऊंगी चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ऐसे। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता क्या है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था तुम्हारा, ये था कोवेलेंट बॉन्ड और ये थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। जब आप ले लेते हो ना ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के पास क्या होते हैं बच्चा? लोन पेयर। ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसको क्या कर देता है? Stabilizes, बिल्कुल stabilizes the Grignard reagent by the donation of the lone pair of the electron from this to this। अब पता है, मैं एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा दे सकता है? ये क्वेश्चन का आंसर वो बच्चा दे सकता है जिसको ये मैकेनिज्म आता है। अदरवाइज बाकी तो मतलब जो भी कहानियां बनाओगे, हम कहानियां ही बनाएंगे ना जब हमने देखा नहीं। अब क्या पता हमें ऐसा होता है नहीं होता है। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन ये है, अब इसका क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन इसका और टाइम हो गया बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन फटाफट करा देती हूँ। अब इसका जो क्वेश्चन आता है, अब तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि इसमें क्या चल रहा था? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा था। इस वाले को थोड़ा देखोगे, ये तो आयनिक बॉन्ड है ना, तो आयनिक वाला तो कोवेलेंट में आना ही नहीं है, तो ये तो आयनिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे चल रहा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर था यहाँ पे, लेट मी फाइंड वन और द टू गुड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ताकि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए इसमें। अगर अभी क्लास में नहीं हुआ ये क्वेश्चन कंप्लीट घर से कर लेना। Yes. क्या हुआ? देखो, ये है बेंजीन। हम रिएक्शन क्या करते हैं? RX में Mg ऐड करते हैं ना, यस मैम। Yes, और ma'am. ये वाला फ्री रेडिकल होता है, समझ रहे हो ना? यस मैम। अब हमने क्या किया, ARX ले लिया और इसमें Mg ऐड कर लिया। तुम्हें मुझे इसके जितने भी प्रोबेबल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोबेबल प्रोडक्ट्स, वो बना के दिखाने हैं। कैसे बनाओगे? देखो, इस वाले क्वेश्चन में तो एक ही बनेगा, क्यों मुझे कैसे पता? अगर शॉर्ट में करें तो Mg एक इलेक्ट्रॉन देगा, यस मैम। ठीक है, ये X नेगेटिव जाएगा या नहीं? अगर X नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये हो जाएगा, तो एक डॉट यहाँ पे लगेगा, तो एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट Mg पे, तो Mg यहाँ पे जाके लग गया। Mg किस में था? प्लस में था, और X नेगेटिव, तो यही प्रोडक्ट बना के आओगे पेपर में। यस मैम। यस मैम। अब अगर एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट प्ले कर दे, एग्जामिनर ऐसा कर दे कुछ, या एग्जामिनर ऐसा कर दे कुछ, तो सोचो क्या क्या हो सकता है। फिर से अपना दिमाग लड़ाओ, तुम्हें सिर्फ अपनी चीज पे कंसंट्रेट करना है। Mg डॉट प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, तो पहला काम क्या होगा बताना मुझे जल्दी जल्दी। मैम एक्स रिमूव हो जाएगा। हाँ, X नेगेटिव, ये डॉट का वहां पे अटैक, तो यानी कि तुम्हारे पास सबसे पहले बनेगा CH2 डॉट, और CH2 डॉट क्या है? बोलो जल्दी, टाइम हो रहा है। बेंजाइल फ्री रेडिकल है या नहीं? यस मैम। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, हाँ या ना? यस मैम। अगर अरे चुप करो भाई, जो बच्चे बोल रहे हैं चुप करो। देखो अपनी बातों में लग गए। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और यहाँ पे एक डॉट आ गया, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को कि ये फ्री रेडिकल आगे मैंने कैसे माइग्रेट कराया? यस मैम। तो अगर यहाँ पे ये आ जाएगा तो एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, ठीक है। अब एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम तो ये हो सकता है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब एक डॉट यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे है, तो किसका अटैक हो जाएगा यहाँ पे? Mg का, सही है, Mg का अटैक हो जाएगा, और Mg यहाँ पे अभी प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए ये जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये H वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसी कहानी नहीं बन सकती? CH3Mg बन सकती है कि नहीं? यस मैम। अब ये जो मैंने ऑर्थो पे बनाया है ना, ये प्रोडक्ट आके जाके पैरा पे भी कंटिन्यू हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें ऑर्थो पैरा बन सकते हैं। ऑर्थो और पैरा बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो तो एनसीईआरटी पढ़ के गया है वो तो एक ही आंसर मार के आएगा, CH2MgBr, वो भी बनेगा। एक बच्चा तो एक आंसर मार के आएगा, ये CH2MgBr। जो स्मार्ट बच्चा है वो ऑर्थो वाला भी बना के आएगा CH3 से, और पैरा वाला भी बना के आएगा, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, ये वाला घर से देखना कि इसका कुछ और हो सकता है। यही मैकेनिज्म से थोड़ा सा एक लेक्चर एक्स्ट्रा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, चलो एनी हाउ। अब नेक्स्ट क्लास में 2 मैकेनिज्म करवा के चैप्टर को हर हालत में खत्म करेंगे। बट आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन एंड लर्न द न्यू थिंग्स, यस और नो?